So now what we are going to do is they will provide us the information in the question and we will have to find out कि कितने masses produce हुए हैं. ठीक है. अच्छा, in this case the stoichiometry that we can see, stoichiometry के according ही काम होगा. ठीक है. In this case you can see that 1 mole of iron 3 oxide reacts with 3 moles of carbon monoxide to form 2 moles of iron and 3 moles of carbon dioxide. So the stoichiometry is 1:3:2:3. ठीक है. Okay, these are stoichiometric numbers जो हम देख रहे हैं. जो मोलर रेशियो होता है उसको हम stoichiometric numbers भी कहते हैं. Now if you want to find out the mass, सही है, in order to find out the mass of products formed in the chemical reaction we will need three things. First thing आपके सामने मौजूद है, which is a balanced equation. Second thing is mass of the reactants, and the third thing would be the molar mass of the reactant. So I'll write this down, that in order to find the mass of products formed in a chemical reaction, we use number one the mass of the reactants. Of course mass of the reactants नहीं पता होगा तो फिर हम यूज क्या करेंगे अपनी कैलकुलेशन के अंदर. Number two, which is the molar mass of the reactants, and number three is a balanced equation which you have above. अब इन्हीं की बेसिस पर हम सारी चीजें कर सकते हैं. ये तीन चीजें पता होंगी हम लोगों तो we can calculate the mass of the products. ठीक है. ओके, अब जैसे कि क्वेश्चन आता है भाई, क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं. जैसे कि क्वेश्चन आता है 12.15 grams of iron 3 oxide. Iron 3 oxide was reacted with an excess of carbon monoxide to form iron. Calculate the mass of iron produced. ये क्वेश्चन आया था. अब इसमें क्या है, इसमें आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल के भी कर सकते हैं लेकिन आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी आपको दिखा दूं. सिर्फ मासेस के थ्रू ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं. So we have the equation with us. The equation was Fe2O3 plus 3CO gives 2Fe plus 3CO2. यही था. अच्छा, जब भी आप किसी किस्म की कैलकुलेशन करेंगे तो आप हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट को यूज करेंगे. जो आपको मास जिस चीज का गिवन होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, और जो एक्सेस होता है उसको आप यूज नहीं करते अपनी कैलकुलेशन के अंदर. ठीक है. तो कार्बन मोनोऑक्साइड इन दिस केस इज एन एक्सेस, वी आर ओनली गोइंग टू यूज 12.15 grams of iron 3 oxide. Now our stoichiometrical ratio is 1:3:2:3. इसी के अकॉर्डिंग अब हम अपने रिलेटिव मासेस, रिलेटिव मोलर मासेस भी अरेंज कर लेते हैं. जो मोलर मास मैंने ऊपर लिखा है ना, सेकंड रिक्वायरमेंट, तो उनको भी हम इसी स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं. ठीक है. तो सिंस वी आर ओनली गोइंग टू वर्किंग विद Fe2O3 एंड Fe, so we are going to use their molar masses. ठीक है. So we can use Fe2O3 का मोलर मास क्या हो जाएगा if we want to calculate it out. तो Fe का जो मास होता है, I'm going to write all of these values here. तो Fe का मास होता है 56, O का मास होता है 16. ठीक है. और हाँ 56 होता है and 16. Yes. If you want to find out Fe2O3, हम क्या करेंगे? So 56
56 टाइम्स 16 टाइम्स 2 इज 32, ठीक है, 16 टाइम्स 3 सॉरी, so 16 times 3 is 48, ठीक है, and Fe2 56 times 2 is 112, right? So 56 times 2 is 112, then we add 112 and 48, तो ये हो जाएगा 1 112 प्लस 48, तो 8 ऐड करेंगे 112 में तो हमारे पास 120 हो जाएगा, और 40 ऐड करेंगे तो 160 हो जाएगा, राइट? सो Fe2O3 का जो मोलर मास है वो 160 है, ठीक है, एंड Fe का जो molar mass है that would be multiplied by 2, so 2 times 56 is 112, so 160 grams per mole of Fe2O3 gives us 112 grams per mole of Fe. Then how much would 12.15 grams of Fe2O3 give Fe? ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल बन गया, हमें कोई मोल्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं हुआ, हम लोगों ने डायरेक्टली उसके मोलर मासेस को यूज अप किया, एज यू कैन सी हियर मोलर मास, और उसी से अब हम सॉल्व कर रहे हैं। सो इन द एंड आर इक्वेशन वुड बिकम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी हो जाएगा 160x इज इक्वल्स टू 112 टाइम्स 2 12.15 and then x is equals to 112 times 12.15 divided by 160. So whatever your answer is going to be the mass of Fe produced. I don't have a calculator with me right now, वरना आप इसको कैलकुलेटर पे करके चेक कर लीजिएगा. That would be the mass of Fe produced. इस तरीके से आप लोग डायरेक्टली मासेस से भी चीज़ों के मास, मैंने के मोलर मासेस से के रेशियो से और स्टोइशियोमेट्रिकल रेशियो को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, उसके मासेस निकाल सकते हैं विदाउट फाइंडिंग आउट एनी मोल्स फर्स्ट, ठीक है.